हेलो। मारिया, आवाज आ रही है? जी मैम। आ रही है ना आवाज? यस मैम। Okay. In last lecture, we have seen large-scale data system. There were two type of data system, that was homogeneous and distributed. Today we will see NoSQL. Share screen. Okay. What is NoSQL? The full form of NoSQL is Not Only SQL. NoSQL, also known as Not Only SQL, is an alternative to relational database system. NoSQL is not same as relational database system. Why? Because in NoSQL we can store large number of data, and in relational database system we can only store a normal database. Relational database are normal database, and NoSQL is our not only SQL, which means we can store large number of data in NoSQL. Right? It refers to all the database which are not based on RDBMS principle. NoSQL refers which database? That database which are not based on RDBMS principle. What is RDBMS? Relational Database Management Principle. NoSQL ऐसे database को refer करता है जो RDBMS के principle पर based नहीं होते हैं. And it is used to access and manipulate the data on large scale. और वो क्या है, क्यों यूज करते हैं हम NoSQL? क्योंकि हमको लार्ज स्केल पे वो डेटा एक्सेस करने के लिए देता है और मैनिपुलेट करने के लिए देता है. It is a non-relational data model which is open source, runs well on cluster, schema-less and is built for new generation web application. जो NoSQL है वो non-relational data model है, right? तो ये क्यों यूज करते हैं हम? अगर हमको न्यू जनरेशन में वेब एप्लीकेशन करना है, न्यू जनरेशन वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए NoSQL यूज होता है. As the source of data are increases, as you know that the source of data are increasing, and hence the data is also generated. When the source of data is increases, so the data will also increase, right? And in different format, the data is generated in different format, not in same format. To handle this type of data, traditional database are not capable. When the data sources are increases, so the data generated is also increases. So data generated in different format, so the traditional database are not capable to handle this type of data. So the concept NewSQL is developed. Now let's see the advantages of using SQL. It provides support to query languages. NoSQL query language को support करता है. It optimizes the performance of system. वो performance improve करता है system के. It provides horizontally scalability. Horizontally scalability meaning कि उसका मीन ये है कि वो ऐड कर सकता है मोर मशीन्स ऐड कर सकता है, ज्यादा मशीन्स ऐड कर सकता है. ये देखो उसकी फिगर भी दी हुई है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की. एक मशीन है, एक सीपीयू है, दो सीपीयू भी उसमें ऐड कर सकता है, थ्री सीपीयू भी उसमें ऐड कर सकता है. इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. ये इसका क्या एडवांटेज है नो एसक्यूएल का. इट सपोर्ट डायनामिक स्कीमास. Dynamic schemas means you can add data without predefined schemas. Schemas को predefine नहीं करना पड़ता, तुम define किए बगैर भी schemas add कर सकते हैं. वो dynamic schemas को support करता है. It supports sharding, a process in which the large data sets or databases are partitioned into smaller. इसमें क्या होता है, शेडिंग का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटाबेसेस और डेटा सेट्स पार्टीशन होते हैं छोटे छोटे. इसमें डेटाबेसेस जो बड़े डेटाबेस होते हैं उनका पार्टीशन होकर छोटे छोटे डेटाबेसेस बनते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इजीली उसको हम मैनेज कर सकते हैं. उन छोटे छोटे डेटाबेस को स्मॉलर डेटाबेसेस जो बनते हैं पार्टीशन होकर, उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और फास्टर होते हैं. वो फास्ट एक्सेस भी फास्ट देते हैं. इसलिए हम उसको स्मॉलर पार्टीशंस करते हैं. उसको बोलते हैं शेडिंग. उसके बाद it does auto replication of the data. What is auto replication? Do you know what is auto replication?
Have you studied auto replication? हेलो, हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आ रही। ओके। Okay, so what is auto replication? It is the process of storing data in more than one site or node. Auto ओके। replication में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो एक साइट पर मोर देन वन साइट पर होता है, मतलब एक से ज्यादा साइट्स पर होता है और एक से ज्यादा नोड्स पे डेटा स्टोर होता है, उसको बोलते हैं ऑटो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, विच हेल्प इन केस ऑफ डेटा लॉस। जो डेटा लॉस के केस में हेल्प होता है, अगर हमारा डेटा लॉस होता है तो अगर हमारा डेटा मोर देन वन साइट पे स्टोर है या मोर देन वन नोड में स्टोर है तो हम उसको डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो ये नो एसक्यूएल ऑटो एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद इट सपोर्ट द फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड कैचिंग। इंटीग्रेटेड कैचिंग मतलब ये मेमोरी प्रोवाइड करता है, मेमोरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ड्यू टू विच फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा आर कैच्ड एंड कैन बी एक्सेस्ड फास्टर व्हेनेवर नीडेड। जो हमको डेटा बार बार लगता है वो उसको कैच करके रखता है और फास्टर जब भी हमको उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो फास्टर वे में हमको देता है एक्सेस उसका उस डेटा का। तो देखो इसका स्टार्टिंग से फर्स्ट ये क्या था, फर्स्ट एडवांटेज था उसका, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू क्वेरी लैंग्वेज को वो सपोर्ट देता है नो एसक्यूएल। सेकंड था इट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है सिस्टम की। इट प्रोवाइड्स हॉरिजेंटली स्केलेबिलिटी मतलब हम उसमें मोर मशीन्स ऐड कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उसमें ज्यादा मशीन्स ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे फिगर दी हुई है। देन इट सपोर्ट डायनामिक स्कीमास। डायनामिक स्कीमास मतलब प्री डिफाइंड स्कीमास को पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता है, वी कैन ऐड डेटा विदाउट प्री डिफाइंड स्कीमास। देन इट सपोर्ट शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो डेटाबेसेस होते हैं, लार्ज डेटाबेसेस या लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, उनको हम पार्टीशन करते हैं स्मॉलर डेटाबेसेस में। क्यों पार्टीशन करते हैं? क्योंकि हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, छोटे डेटाबेस या स्मॉलर डेटाबेस को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उसको पार्टीशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेडिंग। तो ये शेडिंग को सपोर्ट करता है। नो एसक्यूएल में हम डेटा सेट्स और डेटाबेस को स्मॉलर्स में पार्टीशन कर सकते हैं। उसके बाद है इट डज ऑटो रेप्लिकेशन। ऑटो रेप्लिकेशन प्रोसेस मींस स्टोरिंग डेटा इन मोर देन वन साइट्स और नोड्स। ऑटो रेप्लिकेशन में हम डेटा को मोर देन वन साइट्स में या मोर देन वन नोड्स में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हम वहां से डेटा ले सकते हैं। It supports the feature of integrated catching due to which frequently required data are catched। जो हमको बार बार डेटा लगने वाला है वो उसको कैच करके रखता है ताकि हमको बाद में जब भी उसकी जरूरत पड़े तो वो हमको फास्टर उसका एक्सेस दे। ये थे उसके एडवांटेजेस। अभी है नो एसक्यूएल डेटाबेस के टाइप्स। फर्स्ट है उसमें डॉक्यूमेंट डेटाबेस, सेकेंड है ग्राफ स्टोर्स, थर्ड है की वैल्यू स्टोर और फोर है वाइट कॉलम स्टोर। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस? First type is document databases. Here there is key which is paired with document. यहाँ पे की रहेंगी जो डॉक्यूमेंट के साथ पेयर रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मोंगोडीबी। मोंगोडीबी उसका एक एग्जाम्पल है। मोंगोडीबी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे मोंगोडीबी क्या है। मोंगोडीबी बस इतना याद रखो कि मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है और मोंगोडीबी किसका टाइप है, ये एक नो एसक्यूएल का टाइप है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, और डॉक्यूमेंट डेटाबेस का एग्जाम्पल है मोंगोडीबी। Then second type है graph stores. This type of database is usually used to store network data. ये क्यों यूज होता है? नेटवर्क डेटा स्टोर करने के लिए। ये डेटाबेस क्यों यूज होता है? ग्राफ स्टोर्स ये डेटाबेस नेटवर्क डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। where nodes and links between nodes are done. यहाँ पे nodes और लिंक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, नोड्स और लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट द डेटा, यहाँ पे नोड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा डेटा। एंड लिंक रिप्रेजेंट द कनेक्शन, और लिंक क्या रिप्रेजेंट करेगा? कनेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड है की वैल्यू स्टोर। इट इज द सिंपलेस्ट नो एसक्यूएल डेटा सेट in which every key represents some identification and the data here is stored in key value pair. Key value pair देखो कैसी होती है, ये समझो। यहाँ पे रहेंगी हमारी की और यहाँ पे रहेंगी उसकी वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पे समझो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या है उसका? फॉर एग्जाम्पल उसका फर्स्ट नेम है जय, तो इधर लेंगे जय, तो ये हुई हमारी की और ये होंगी उसकी वैल्यू, तो उसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो ये की वैल्यू में डेटा स्टोर होता है।
ठीक है, ये था की वैल्यू। समझ में आया ना? की वैल्यू, की मतलब एक तरफ रहेगा, एक टेबल रहेगा, एक तरफ रहेंगी उसकी आईडी, और आईडी कितनी रहेंगी? 1, तो वो होंगी उसकी आईडी रहेंगी की, और 1 क्या होंगे? उसकी वैल्यू होंगी। अगर समझो फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम उसका रहेगा की, और फर्स्ट नेम क्या है उसका? जय है, तो वो रहेंगी उसकी वैल्यू। तो इस टाइप में स्टोर होता है डेटा, की वैल्यू स्टोर में। For the wide column store, it is used to store large data set. For example, Facebook data is stored in Cassandra, which is of wide column store database type. वाइड कॉलम्स मतलब कि जहाँ पे हमको लार्ज डेटा सेट स्टोर करना है, वो वाइड कॉलम स्टोर वाले डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसमें एक एग्जांपल दिया, कैसेंड्रा डेटाबेस। कैसेंड्रा डेटाबेस क्यों यूज होता है? फेसबुक का डेटा स्टोर करने के लिए हम कैसेंड्रा डेटाबेस को यूज करते हैं। कैसेंड्रा डेटा एक वाइड कॉलम स्टोर डेटाबेस का टाइप है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। फर्स्ट टाइप कौन सा था? डॉक्यूमेंट डेटाबेस। उसमें कौन सी एग्जांपल थी? मोंगोडीबी। सेकंड, ग्राफ स्टोर। ग्राफ स्टोर में, ग्राफ स्टोर क्यों यूज करते हैं? नेटवर्क डेटा को स्टोर करने के लिए ग्राफ स्टोर यूज करते हैं हम। वहां पे नोड और लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट करता है डेटा को, और लिंक रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन को। उसके बाद था की वैल्यू स्टोर। एक टेबल में एक साइड की रहती है, एक साइड उसकी वैल्यू रहती है। की मतलब समझो दिया है स्टूडेंट की आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर, रोल नंबर 1 है तो उसका नेम क्या है? तो उस स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। फिर आईडी 2 है, 2 का नेम क्या है उसके सामने? 2 क्या हो गई हमारी? की हुई, और उसका नेम जो हुआ उसकी वैल्यू हुई, तो उसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। उसके बाद है वाइड कॉलम स्टोर। वाइड कॉलम में हम बहुत सारा डेटा सेट अगर स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं। वाइड कॉलम का एक एग्जांपल दिया है, वाइड कॉलम डेटाबेस का टाइप दिया है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा में हम फेसबुक का डेटा स्टोर करते हैं। ओके। उसके बाद है मोंगोडीबी। MongoDB, it is a NoSQL database and is open source and document oriented database. It supports cross platform and is written in C++ language. ये जो MongoDB ये भी नो एसक्यूएल डेटाबेस का एक टाइप है। हमने देखे थे ऊपर के डॉक्यूमेंट डेटाबेस में था नो MongoDB, राइट? तो एक इसका टाइप है, नो एसक्यूएल का टाइप है। ये किसको सपोर्ट करता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म को। मतलब कि ये दिस कैन वर्क ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। Cross platform is this MongoDB can work on various operating system and it is written in C++ language. In which language is it written? In C++ language. MongoDB provide high performance, high availability and automatic scaling to the database. MongoDB क्या प्रोवाइड करता है? हाई परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, उसकी अवेलेबिलिटी हाई होती है, और वो ऑटोमेटिक स्केलिंग भी करता है। उसके फीचर्स है, देर आर वेरियस फीचर्स ऑफ MongoDB. फर्स्ट उसका फीचर है, इट सपोर्ट एडहॉक क्वेरीज, which means that query do not have any specific way to be fired. Ad hoc query मतलब एक सिंगल क्वेरी रहता है जिसमें हमको कोई वे नहीं होता है, उसको क्वेरी को फायर करने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता है, तो वो एडहॉक क्वेरीज को सपोर्ट करता है। सेकेंड, इट सपोर्ट इंडेक्सिंग सो दैट द डेटा कैन बी इंडेक्स प्रॉपर्ली। वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है जिसकी वजह से इंडेक्स डेटा जो है वो प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड होता है। थर्ड, इट सपोर्ट रेप्लिकेशन which help us to scale the data as and where needed. It is done using master and slave configuration. वो replication मतलब डेटा को कॉपी करते रहता है। मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? एक डिवाइस कंट्रोल करता है दूसरे डिवाइसेस को। जो जो डिवाइस कंट्रोल करेगा दूसरे डिवाइस को वो रहेगा मास्टर, राइट? और जो जो डिवाइस उससे कंट्रोल होंगे वो रहेंगे स्लेव डिवाइसेस। तो ये होता है मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद डेटा डुप्लीकेशन इज डन इन MongoDB so as to scale the database. डेटा डुप्लीकेशन में रिड्यूस स्टोरेज ओवरहेड, मतलब कि वो जो स्टोरेज रहता है उसको रिड्यूस करता है। फिफ्थ, इट डज ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी ऑप्टिमाइज। वो क्या करता है? ऑटोमेटिक बैलेंस को लोड करता है, सो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैलेंस लोड करता है इसलिए उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इट सपोर्ट मैप रिड्यूस एंड एग्रीगेशन। मैप रिड्यूस मतलब कीज दैट हैव मल्टीपल वैल्यूज, उसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। एक कीज के मल्टीपल वैल्यूज होंगे उसको बोलेंगे मैप रिड्यूस। तो
रिड्यूस करता है। एग्रीगेशन टूल्स मतलब कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू वन प्लेस। मल्टीपल सोर्सेस पे जो हमारा डेटा है उसको कंबाइन करके एक प्लेस पे लाता है एग्रीगेशन टूल। उसके बाद है सेवेंथ, इट यूजेस जावास्क्रिप्ट एंड इट इज नॉट प्रोसीजर ओरिएंटेड। ये जावास्क्रिप्ट यूज करता है और ये प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है। इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, और वो हाई परफॉर्मेंस देता है मोंगोडीबी। उसके बाद डेटा टाइप सपोर्टेड इन MongoDB इंक्लूड स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, डबल, मिनिमम और मैक्सिमम कीज, एरेज, ऑब्जेक्ट, नल, सिंबल, डेटा एक्सेट्रा। अभी डेटा टाइप्स MongoDB में कौन से डेटा टाइप सपोर्ट होते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर, जैसे ए, बी, सी, ये कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग मतलब किसी का नाम है तो वो होगा स्ट्रिंग। जैसे कि डेटा साइंस, ये क्या होगा? स्ट्रिंग में आएगा। और कैरेक्टर में क्या आएगा? ए, बी, सी, ये कैरेक्टर होता है। तो ये कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट करता है? स्ट्रिंग को। इंटीजर मतलब क्या? नंबर 1 2 3 4। बूलियन मतलब क्या? आइदर ट्रू और फॉल्स। डबल मतलब डेसिमल नंबर्स, पॉइंट वाले। मिनिमम और मैक्सिमम कीज, एरेज तो मालूम है, ऑब्जेक्ट्स भी। नल मतलब जो एम्प्टी रहते हैं वो। सिंबल्स मतलब प्लस माइनस वो वाले सिंबल्स, और डेटा एक्सेट्रा। ये सब डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। अभी हम लोग ने क्या देखे? फीचर्स देखे मोंगोडीबी के। अभी है उसके बाद नेक्स्ट है HBase। ओके, HBase it is a data model and it is similar to Google's Big Table. ये भी एक डेटा मॉडल ही है जो किससे सिमिलर किससे है? Google's Big Table से सिमिलर है। HBase provide quick access to large amount of structured data. ये लार्ज स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्विक एक्सेस देता है, प्रोवाइड करता है, जल्दी से एक्सेस देता है अगर तुम्हारा डेटा लार्ज है और स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो। इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कॉलम ओरिएंटेड होता है, मतलब टेबल्स में होगा। एंड इट्स प्लेस्ड ऑन द हडूप फाइल सिस्टम, HDFS। हडूप फाइल सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? HDFS। HDFS मतलब हडूप फाइल सिस्टम। ये कहाँ पे होता है? जो हमारा HBase है वो हडूप फाइल सिस्टम में होता है। टू स्टोर रीड एंड एक्सेस द डेटा इन HDFS, HBase इज यूज्ड। अगर तुमको हडूप फाइल सिस्टम का डेटा जो है वो रीड करना है या स्टोर करना है या एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? HBase यूज करना पड़ेगा। HBase provides fast lookups for larger table and low latency access to single row from billions of record। अभी यहाँ पे लार्ज डेटा मतलब बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे टेबल में, टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे वो लो लेटेंसी देता है, मतलब कि कम टाइम में वो तुमको एक सिंगल रो, अगर तुमको एक सिंगल रो चाहिए है, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें, बिलियंस ऑफ रोज है, उसमें से अगर तुमको एक सिंगल रो चाहिए रहेंगी तो वो कम टाइम में तुमको उस लार्ज डेटा में से, उस लार्जर टेबल में से एक रो निकाल कर दे देगा। ये क्या करता है? ये होता है HBase का काम। It is used in companies like Facebook, Twitter, Yahoo, etc., where large amount of data storage and fast and continuous access of data is done। ये HBase कौन यूज करते हैं? कौन सी कंपनीज? फेसबुक, ट्विटर। अभी तुम अगर फेसबुक पे किसी को सर्च करेंगे तो वहाँ पे लार्ज कितने सारे लोग होंगे, बिलियंस लोग हैं फेसबुक पे, राइट। लेकिन अगर तुम जिसका सर्च करते जिसका नाम, तो तुमको 1 सेकंड में वो नाम निकाल कर देगा सर्च में, है ना। मतलब वो फास्ट डेटा एक्सेस करता है, बिलियंस ऑफ, उसके पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसमें से वो तुमको एक रिकॉर्ड निकाल कर दे देता है, वो भी जल्दी से, लो लेटेंसी, कम टाइम में वो तुमको एक्सेस करता है। Tables in HBase are stored by rows, and as HBase has columns-oriented database, the table schema defines only column families. इसमें डेटा को टेबल्स में स्टोर होता है HBase में। उसके बाद है अभी HBase के फीचर्स। Now let's see the features of HBase. First is it is linearly scalable.
and can grow up to any size. हम इसमें भी लीनियरली स्केलेबल का मीनिंग यही होता है कि हम उसमें मशीन्स ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड more machines or CPUs without changing the application code. We don't need to change the application code. We can add the CPUs or more machines to the our system. It provide automatic feature to recover from failure. फेलियर अगर होता है तो ऑटोमेटिक रिकवर करता है, तो वो ये फीचर भी देता है. देन रीड एंड राइट ऑपरेशन कैन बी डन कंसिस्टेंटली. एक साथ हम उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं. इट प्रोवाइड इजी इंटरफेसेस फॉर कम्युनिकेशन विद डिफरेंट सिस्टम्स. अगर तुमको दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो जो इंटरफेस है वो इजी इंटरफेस प्रोवाइड करेगा. इट सपोर्ट क्लस्टरिंग एंड रेप्लिकेशन. क्लस्टरिंग मतलब क्या? लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में देखे थे हमने व्हाट इज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग मीन्स कि जो डेटा सेट्स है, जो डेटा पॉइंट्स है, जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स है उनको एक ग्रुप में करेगा और जो डिसिमिलर डेटा पॉइंट्स है उनको एक ग्रुप में करेगा. दैट इज क्लस्टरिंग. एंड व्हाट इज रेप्लिकेशन? मतलब डेटा को कॉपी करते रहेगा. ऑटो रेप्लिकेशन में क्या होता है? डेटा मोर देन वन साइड पे स्टोर होता है. रेप्लिकेशन मतलब कॉपिंग, वही होता है, कॉपी करते रहता है डेटा को. ये हो गया एचबेस के फीचर्स. मुझे बताओ अभी स्टार्टिंग से क्या क्या देखे. नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या था? व्हाट इज नो एसक्यूएल? नो एसक्यूएल इज आल्सो नोन एज नॉट ओनली एसक्यूएल, राइट? हाँ. नो एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं? अगर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है तो जो नॉर्मल हमारे जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है वो कैपेबल नहीं है, वो उतना स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? नो एसक्यूएल यूज करते हैं. उसके एडवांटेजेस बोलो क्या क्या थे. It supports query languages. ओके, नेक्स्ट सिस्टम को एडवांटेज. ऑप्टिमाइज करता है. हाँ, सिस्टम का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है. उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज बोलो. हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी देता है. हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब वी कैन ऐड मोर मशीन्स और सीपीयूज, राइट? हाँ. उसके बाद नेक्स्ट उसका It डायनामिक supports स्कीमा. dynamically schemas. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट Sharing वगैरह भी support करता है. Suppose sharing a process in which a large data sets or databases are partitioned into smaller and faster and easy manageable databases. ओके, नेक्स्ट It does auto replication of data with help in case of data loss. व्हाट इज ऑटो रेप्लिकेशन? It stores data. इन in what? In more than one sites or nodes. Auto No. replication stores data in more than one sites or nodes. No. Then next, It supports the feature of integrated caching due to it frequently required data are cached and can be accessed faster whenever needed. okay. Then types of NoSQL databases. First, a document database. इसमें एग्जांपल कौन सी थी डॉक्यूमेंट डेटाबेस की? MongoDB. 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 ओके. देन ग्राफ स्टोर्स, राइट? उसमें क्या था? क्यों यूज करते हैं ग्राफ स्टोर्स? नेटवर्क डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. उसमें क्या रहता है? नोट्स और लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ओके, नोट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा और लिंक कनेक्शन को. उसमें थर्ड है की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर मतलब
की वैल्यू स्टोर में की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा। की वैल्यू पेयर कैसी रहती है, एक एग्जांपल बताओ। की वैल्यू मतलब एक की रहेंगे, जैसे स्टूडेंट आईडी, उसके सामने स्टूडेंट की आईडी क्या है, 1 है, तो की स्टूडेंट आईडी उसकी की हुई और वैल्यू क्या हुई, 1। स्टूडेंट नेम उसकी की हुई और उसकी वैल्यू क्या होंगी, जो भी उसका नेम है, जय वगैरह जो भी नेम है वो उसकी वैल्यू होगी, तो ये वो की वैल्यू पेयर, इसमें डेटा स्टोर होता है। फोर्थ फोर्थ बोलो टाइप कौन सा था, वाइड कॉलम स्टोर, उसमें उसकी एग्जांपल क्या थी, फेसबुक डेटा, फेसबुक डेटा का डेटाबेस कौन सा होता है, फेसबुक का डेटा कौन से डेटाबेस में स्टोर होता है, कैसेंड्रा डेटाबेस में स्टोर होता है फेसबुक का डेटा। ओके, नेक्स्ट है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कौन सी लैंग्वेज में मोंगोडीबी, C++, सी प्लस प्लस, और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स वर्क ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। MongoDB can work on various operating systems. Then features of MongoDB. फर्स्ट फीचर क्या है MongoDB का, it support ad hoc queries, which means that queries do not have any specific way to be fired. Second था उसका feature, it support indexing. थर्ड, it support replication. replication मतलब कॉपी करता है डेटा को। डेटा, उसके बाद डेटा डुप्लीकेशन मतलब के रिड्यूस ओवरहेड स्टोरेज को रिड्यूस करता है। फोर्थ है इट डज ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग। फोर्थ, मैप रिड्यूस को सपोर्ट करता है। फिफ्थ, जावास्क्रिप्ट यूज होता है इसमें, और एट सेवेंथ उसका लास्ट है, हाई परफॉर्मेंस देता है मोंगोडीबी। और उसमें डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है मोंगोडीबी, स्ट्रिंग, NoSQL, इंटीजर, बूलियन, integer, हाँ, डबल, एरे, एरे, सिम, और डबल मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब क्या, नंबर्स, इंटीजर 1 2 3। स्ट्रिंग मतलब, स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम, हाँ गुड, नाम बुलियन, 0 और बुलियन 1 या ट्रू और फॉल्स। हाँ, डबल, डबल मतलब, डबल डेटा टाइप मतलब डेसिमल पॉइंट्स में जो आते हैं, डेसिमल में जो आते हैं पॉइंट वाले उसको बोलते हैं डबल। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नल, सिंबल्स एक्सेट्रा। ओके, ठीक है, एंड कर देती हूँ मैं क्लास। हाँ मैम।